Okay, I'm again sharing my screen. Okay, so I have turned on the recording. Okay, so in this class, basically we are going to exercise the different questions on based on the different normal forms. Okay, and the last class basically we have covered different normal form first NF to BCNF. Okay, now in today's class we will discuss some exercise on keys and as well as on finding or identifying the normal form of a given relation. Okay, so just first of all, we discuss about how to find a key. Key basically we have seen in order to find a key, we have to we have to given a functional dependencies. So based on that functional dependency, we have to identify the attributes or set of attributes who are able to identify all the other attributes. Okay, so you can identify this by using the closure approach. So whenever you are going to identify closure, so you have to take care in order to identify a key, the attribute which is a part of a key, does not occur any side of the FDs. So if such kind of attributes exist in a relation, like there is a relation R and there will be a 4 attribute A, B, C, D, and only 3 attributes are participated in the function dependencies, then the attributes remaining in the functional dependencies will also be considered as a part of the key or must be considered as a part of the key. Okay, that we have discussed also during the discussion of the functional dependency. Similarly, the attribute is a part of a key if it occurs on the left hand side of the FD but never occurs on the right hand side of the FD. Okay, so these two things you have to mandatorily consider while identifying a key. Okay, next, the attribute is not a part of a key if it occurs on the right hand side of the FD but never occurs on the left hand side of the FD. कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट साइड में तो है एफडी के बट इट इज नॉट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एफडीज और एनी एफडीज, then it will not be then there is a guarantees that it will not be a part of the key. तो वो किसी का पार्ट नहीं होगा, किसी की का पार्ट नहीं होगा. ओके, the attributes may be a part of a key or not if it occurs on the both side of FD. तो कोई attributes है जो दोनों साइड है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, but mandatorily these two things will be considered as a attributes will be a part of the key if it does not occur any side of the FD or if it occurs at the left side of the FD. Is it okay? So this is a concept when we are going to identify a key. So this is just a relation. You can see C tends to A, B tends to C. So here if I ask you to find the key, so what will be the key for this relation? So you can see C tends to A, B tends to C, or there are 4 attributes. First, select the attribute which are not available in the FDs. कौन सा attributes है जो FDs के FDs में available ही नहीं है? So key will be BD. D is an attribute which is not available in these FDs. So D will be a part of the key. Now next attributes we have to see which is not available at the right side, but it is available at the left side. ऐसा कौन सा attributes है? B. Is it okay? So key will be BD. Is that okay? So if you are going to identify the closure of the BD, so B will be there, D will be there, B से C identify करोगे, C will be there, C से A identify करोगे, so A, B, C, D all will be there. So BD will be the key. Is that okay? Yes sir. और आप कौन सा बोल रहे थे? यही बोला सर. यही बोला. गुड. ठीक है. So you can see for this है ना. Similarly you can see for the other questions है ना. नेक्स्ट ये देखो, बताओ कोई ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो एफडीज में अवेलेबल नहीं है? सारे के सारे अवेलेबल है. कोई ऐसा एट्रीब्यूट्स है जो ओनली लेफ्ट साइड में हो, राइट में ना हो? बी. तो बी से सी, सी से ए, सी से डी, तो इट मींस बी इज अ की. बी आ जाएगा, बी से सी आ जाएगा, सी से ए आ जाएगा और सी से फिर डी भी आ जाएगा. तो बी की हो गया यहाँ पे. इज दैट ओके? ओके ना? यस सर. ओके. इसमें देखो A tends to B, B C tends to D और A tends to C.
बताओ। जल्दी करा करो। सर ए। ए, वेरी गुड, जल्दी देख लिया करो इसमें कौन नहीं है। ए नहीं है तो ए को ले लो। अब ए का क्लोजर देखने से ए से बी आ गया, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, बी से बी और ए भी आ गया तो, और ए से सी भी आ रहा है, और बी सी आ गया तो डी भी आ गया। लो हो गया एक ही। इज दैट ओके ना? तो एक ही है इसमें। इज दैट ओके? ओके। अब ये क्वेश्चन दिया है, सपोज यू आर गिवन ए रिलेशन विद आर विद फोर एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू द फॉलोइंग। कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करना है और आपको चेक करना है विच इज द बेस्ट नॉर्मल फॉर्म और हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। बताओ। पहले तो की आइडेंटिफाई करो। की के लिए क्या करना है, एट्रीब्यूट्स देखो जो राइट साइड में अवेलेबल नहीं हो। सी अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, बी अवेलेबल, सारे के सारे एफडीज में तो है, बट राइट में कौन नहीं है? सर बी डी। बी नहीं है, तो बी को ले लिया मैंने, तो बी का क्लोजर निकालूंगा। और कौन नहीं है राइट में? सर डी। डी नहीं है तो डी भी आएगा पार्ट में। तो इन दोनों का क्लोजर निकालोगे तो बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी डी आ गया तो सी भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, तो बी डी की हो गया। इज दैट ओके? नाउ चेक फॉर फर्स्ट एनएफ। तो अभी अज्यूम कर सकते हो, अज्यूम दिस रिलेशन इज इन द F1 NF। अगर टेबल दिया होगा तो टेबल में तो आप 1 NF को चेक कर सकते हो, बट टेबल नहीं है तो आप अज्यूम कर लो रिलेशन इज गिवन इन 1 NF। इज इट ओके? तो आप चेक करो 2 NF में है क्या, 3 NF में है क्या, BSc NF में है क्या। पहले 2 NF में चेक करो। 2 NF के लिए कंडीशन क्या थी? पार्शियल डिपेंडेंसी। BD की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी है यहाँ पे। इज देयर एनी पार्शियल डिपेंडेंसी? पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब पता है? यस और नो बोलो यार, तो बताते जाऊंगा जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ भाई तारू, रोहन। यस सर, वो बी से सी हो रहा है और डी से ए हो रहा है, तो मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। यस, बिकॉज इफ देयर इज अ डिपेंडेंसी वी आर पार्ट ऑफ द की। अगर कोई पार्ट ऑफ द की है और वो डिटरमाइन कर रहा है नॉन की एट्रीब्यूट्स को, नॉन की एट्रीब्यूट्स को, देन देयर इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। सो देयर दिस डिपेंडेंसी एंड दिस डिपेंडेंसी बोथ आर पार्शियल डिपेंडेंसी। सो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? ओनली 1 NF। 1 NF, ठीक है। तो ये इसका 1 NF हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आएगा। तो इसमें देखो रिलेशन आर इज इन 1 NF बट नॉट इन 2 NF। above these are their partial dependency. Is it okay? Okay? Yes, sir. Okay. Now check for the this one. की तो सर बी हो जाएगा इसमें। इसमें बी की हो गया तो बी का क्लोजर निकालोगे, बी आ जाएगा, बी से सी आ जाएगा, सी से डी आ जाएगा, डी से और सी से ए भी आ जाएगा, तो बी की हो गया। पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करो, कोई है क्या? सर एक बार पार्शियल डिपेंडेंसी वापस बता देंगे? पार्शियल डिपेंडेंसी होता है कि की का कुछ पार्ट, अगर कंपोजिट की है, कंपोजिट एट्रीब्यूट से की बनी हुई है, मल्टीपल एट्रीब्यूट से की बनी हुई है, तो उसका कोई पार्ट अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करे। नॉन की एट्रीब्यूट्स पता है? जो एट्रीब्यूट्स की का पार्ट नहीं है वो पार्शियल, वो नॉन की एट्रीब्यूट्स होता है। इस केस में क्या था? BD हमारा की था। तो अगर कोई डिपेंडेंसी ऐसा है B टेंड्स टू, D टेंड्स टू, और यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट्स हो, चाहे A आ जाए, चाहे C आ जाए, चाहे इधर पे A आ जाए, चाहे C आ जाए, तो इन दोनों चारों डिपेंडेंसी, ये 4 डिपेंडेंसी बनेंगी ना, ऑल आर पार्शियल डिपेंडेंसी। इज इट ओके? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे तो की अगर देखोगे तो की तो सिंगल ही एट्रीब्यूट से बना हुआ है, तो इसका पार्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज तो होगी नहीं ना इसमें। यस सर। क्योंकि इसमें जो सी, ये डिपेंडेंसी है जो की के द्वारा है, इसमें सी डिपेंड है किस पे? बी पे। तो बी तो कंप्लीटली की है ना, तो फुल डिपेंडेंसी हो गया यहाँ पे। सी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द की, नॉट अ पार्ट ऑफ द की। सी किस पे डिपेंड है? बी पे डिपेंड है, बट टोटली बी पे डिपेंडेंट है, और बी टोटली की है,
बी कोई की का पार्ट नहीं है, बी टोटली की है। अगर कोई डिपेंडेंसी, जैसे प्रीवियस रिलेशन में अगर कोई ऐसी डिपेंडेंसी होती बी डी टेंस टू और कुछ भी होता तो वो पार्शियल नहीं मानी जाती। इज दैट ओके? यस सर। बीडी तो पूरी की है ना, पार्ट नहीं है ना की का। पार्शियल का मतलब पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट, है ना। अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट्स पार्शियली डिपेंड कर रहा है की पे, देन इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे पार्शियली नहीं है ना, ये तो फुल्ली डिपेंडेंट है ना ऑन द की, क्योंकि बी खुद की है ना। सो दिस इज नॉट अ पार्शियल डिपेंडेंसी, नॉट अ पार्शियल डिपेंडेंसी। इज इट ओके? यस सर। अब पार्शियल ये है नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन नॉन की है, नॉन की है, नॉन की को कर रहा है। और अगर की का पार्ट हो, पार्ट ऑफ की डिटरमाइन कर रहा हो नॉन की को, तो पार्शियल होता है, ये पार्शियल होती है। तो ये तो पार्शियल हो गई नहीं, हुई नहीं ना, ये पार्शियल नहीं, ये नहीं। तो 2NF में तो है, अब चेक करना है 3NF। 3NF में क्या होता है? 3NF का कंडीशन होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। 3NF का कंडीशन है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि कोई नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स, no non-key attributes, no non-key attribute transitively depend on a key। कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये देखो सी डायरेक्टली डिपेंड है बी पे, यस सर। जबकि आप देखोगे डी, तो एक डिपेंडेंसी बन रही है बी से सी और सी से डी। तो आप देखो डी बी पे डिपेंड है, यस लेकिन सर। ट्रांजिटिवली बी पे सी पे जाओगे, सी से फिर डी पे जाओगे, तो डायरेक्ट तो नहीं है ना, लेकिन ये ट्रांजिटिवली है, क्योंकि बी से डी भी आ जाएगा ना एक डिपेंडेंसी। बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, तो बी डी को भी डिटरमाइन करेगा। तो इसका मतलब है डी बी पे डिपेंड है, ट्रांजिटिवली है। इज इट ओके ना? सिमिलरली बी से सी जा रहे हो और सी से ए जा रहे हो, तो इट मींस ए इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन बी। इज इट ओके? So that's why here transitive dependencies are there. So that's why it is not in 3NF. तो highest normal form इसका क्या होगा? B 2NF. Is it okay? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 3NF above there है transitive dependency. You can see as per FD B tends to C and C tends to D. तो B tends to D मिल जाएगा, तो ये transitivity हो गया। Similarly बी टेंस टू सी, सी टेंस टू ए है, तो बी टेंस टू ए आ जाएगा, तो ये भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। तो ए इज ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन की। ओके, सो दैट इज रिलेशन इज नॉट इन 3NF। इज इट ओके? सो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? 2NF। ठीक है? इज देयर एनी क्वेरी? हेलो? नो सर। ओके, नेक्स्ट चेक करो। अब आंसर करो यार खुद से थोड़ा सा। देखो क्या है, A टेंस टू B, BC टेंस टू D, A टेंस टू C। की आइडेंटिफाई करो, की क्या है? ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट जो राइट साइड में नहीं है? ए तो की का पार्ट हो गया। ए से बी पे जाओगे, ए से सी पे जाओगे, तो ए ही की आ जाएगा ना। यस सर। अब ए की है तो ए से बी पे गए, तो ये तो पार्शियल होगा ही नहीं, पार्शियल तो होगी नहीं। जब की सिंगल एट्रीब्यूट से बनी होती है तो पार्शियल डिपेंडेंसीज तो होगी नहीं, गारंटी है। तो 2NF में तो होगा ही होगा। 3NF के लिए चेक करो नॉन की एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। बी है नॉन की, BC भी नॉन की है, डी भी नॉन की है। तो आप देखो ये एक की है, बाकी के नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, तो ए डी पे, डी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया? ए से हम बी पे गए, ओके, ए से हम सी पे गए, और BC से हम किस पे गए? डी पे। तो ये ट्रांजिटिविटी हो गई कि नहीं हो गई? ये डी पे तो डिपेंड होगा, बट ट्रांजिटिवली। इज इट ओके? ये समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो ए से डी की भी डिपेंडेंसी बन जाएगी ना। क्लियर है?
यस सर। तो ये ट्रांसिटिविटी आ गई, ट्रांसिटिविटी, क्योंकि डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द की और डी इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स, दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी. सो यू कैन सी इट इज इन 2NF नॉट इन 3NF ड्यू टू द ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी देख सकते हैं, ए से बी, ए से सी, देन ए टेंड्स टू बीसी होगा यूजिंग यूनियन रूल. ओके, और बीसी से हम किस पे पहुंच गए, डी पे. तो डी इज ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट ऑन इट. ठीक है, ओके, इज दैट ओके? यस सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसको बताओ. ए बी सी टेंड्स टू डी और डी टेंड्स टू ए. सो बी एंड सी जो है वो है हमारे राइट हैंड साइड में नहीं है. बी सी की का पार्ट होगा. तो हाँ. बी सी से सारे के सारे मिल रहे हैं क्या? बी नो से तो ओनली बी आएगा, सी आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं ना. सर. तो अब और क्या लेना पड़ेगा आपको साथ में? सर अगर ए ले ले हम साथ में तो हमारे पास डी आ जाएगा. ए आ जाएगा और डी भी आ जाएगा. तो सारे सारे, एक तो एबीसी हमारी की हो गई, कोई और भी की है? यस सर, डीबीसी भी की. बी सी डी, बी सी डी से बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आ गया तो ए आ गया. ये भी तो की हो गया. यस सर. दो की है. तो अब देखो कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है? सर सेकंड वाले में पार्शियल डिपेंडेंसी है. कैसे? सर डी ए को यूनिकली आइडेंटिफाई. तो ए भी तो की का पार्ट है. नहीं सर, सेकंड वाले में बीसीडी में अगर हम बीसीडी को की यूज करते हैं, हाँ, अगर सर हम बीसीडी को की यूज करते हैं तो नहीं, की दोनों ही रहेंगी. यहां पे आप देखो वो कोई भी देयर इज नो नॉन की एट्रीब्यूट्स. कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट्स ही नहीं है जो की का पार्ट नहीं है. अगर ऐसा कंडीशन जब बनता है जहां पे कोई की का एट्रीब्यूट्स, कोई भी एट्रीब्यूट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो उस केस में एक तो पार्शियल नहीं होगा और ट्रांसिटिविटी भी नहीं होगी. ये दो तो नहीं होंगे, गारंटी है. जब सारे के सारे की हैं तो ट्रांसिटिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रांसिटिविटी नॉन की और की के बीच में होती है. नॉन की एट्रीब्यूट्स और की के बीच में होती है. पार्शियल जब नॉन की और की के पार्ट के बीच में होती है. तो जब सारे के सारे पार्ट के हैं की के, तो पार्शियल नहीं होगा, ट्रांसिटिविटी भी नहीं होगी. तो 100% 3NF में तो होगा ही होगा, 101%. इज इट ओके? यस सर. बताओ, कोई क्वेरी है यहाँ पे? तो डाउट है तो बताओ. बताओ, कोई क्वेरी हो तो. हेलो, नो सर. यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? आप समझ में आया ना कि मैं क्या कह रहा हूं? इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर. अब BCNF की कंडीशन क्या होती है? BCNF की कंडीशन क्या होती है? अगर कोई डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y, तो या तो x शुड बी अ सुपरसेट, और मैं बोलूं y इज अ सबसेट ऑफ x, और x शुड बी की. ऐसा है तो BCNF में होगा. तो यहां पे देखो, ये वाला तो डिपेंडेंसी में क्या हो रहा है, इस वाले में क्या है, ये सुपरसेट तो नहीं है x, और D इज नॉट अ सबसेट ऑफ ABC, बट ABC इज अ की. तो ABC इज अ की, तो ये चल जाएगी, दिस इज ओके. बट इन दिस केस यू कैन सी A इज नॉट अ सबसेट ऑफ D एंड D इज ऑल्सो नॉट अ की. तो इस मीन्स ये डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है. किसमें अलाउ नहीं है? BCNF में. इज इट ओके? देखो, आप लोग बोल नहीं रहे हो तो मेरे को पता नहीं लग रहा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो प्लीज रिस्पॉन्ड मी. क्यों भाई,
तारू एक बार रिपीट कर दो, क्या बोला सर, एक बार रिपीट कर दो। देखो बीसीएनएफ का कंडीशन होता है, बीसीएनएफ का जो कंडीशन है, पहले अभी ये तो पता चल गया ये 3NF में है, ये क्लियर है। यस सर। बीसीएनएफ का कंडीशन होता है, बीसीएनएफ का कंडीशन होता है अगर कोई डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y, तो इसका मतलब x शुड बी सुपरसेट ऑफ y, ये हो, और y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x, ये हो। प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ना, ये होता है कि नहीं? यस सर। और x शुड बी की, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब वो बीसीएनएफ में है। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके कि नहीं? यस सर। यस सर। अब हमारे पास डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी है हमारे पास ए बी सी टू डी, और डी टेंड्स टू ए, और हमारे पास की क्या है? ए बी सी है और बी सी डी है। इज इट ओके? अब पहली डिपेंडेंसी चेक करो, क्या ये बीसीएनएफ में है? तो पहली कंडीशन चेक करो, अगर x शुड बी ए सुपरसेट ऑफ y, तो इसको x मानो, इस टोटल को क्या मान लो? x, इस टोटल को क्या मान लो? y। तो y इज ए सबसेट ऑफ x, ऐसा है? यस और नो? डी सबसेट है एबीसी का? तारू नहीं सर। नहीं है ना, तो बोलो ना यार। डी सबसेट नहीं है मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं होती, तो ये वाली है क्या? ये वाली है क्या? ये दोनों ही फेल हो गई ना? क्यों? यस सर। तो ये वाली है क्या? x शुड बी अ की, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? एबीसी, एबीसी की है क्या? चेक करो। यस सर। तो इसका मतलब ये इसमें ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, और लिखा है ना सब जगह पे। यस सर। तो इसका मतलब ये तो सही है। इस वाली को चेक करो अब, ए डी का सबसेट है? नहीं सर। नहीं है, ये वाली फेल हो गई, ये वाली भी फेल हो जाएंगी, दोनों ही फेल हो गई। ठीक है, क्या डी की है? क्या No, डी sir. की है? नो सर। नहीं, इसका मतलब सारी की सारी कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब ये बीसीएनएफ में नहीं है। रीजन ड्यू टू दिस डिपेंडेंसी, this dependency is not satisfying the condition of BCNF. It means this relation is not in BCNF due to this dependency. Is it okay? Is it okay? यस सर। Okay. तो आप देखो, relation is not in BCNF but it is in 3NF, because in the above FDs both FDs have prime attributes D and A, dependent right side. तो D और A राइट साइड में है, तो ये नहीं अलाउ नहीं है ड्यू टू दिस रीजन। इज इट ओके? ओके। यस। अब ये क्वेश्चन है, ये वाला बताओ, आप अच्छे से बताना, गलत मत करना। यहाँ पे एफडीज है आपका, ए बी टेंस टू सी ई, और ई टेंस टू ए बी, और सी टेंस टू डी। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बताना है आपको। पहले की निकालो, की क्या आ रहा है? ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो राइट साइड में नहीं है? सर है तो सारे, बट ए बी की हो सकता है ना हमारा। ये भी हो सकता है, बट आपको देखो पहले राइट साइड में जो नहीं है वो उसको ले लो, लेकिन सभी सारे के सारे राइट साइड में हैं।
तो आप पहले चेक करो कौन किसको ले सकते हैं। ए बी को चेक कर लो, चेक करो। ए बी से अपन किस पे जा रहे हैं, ए बी ए बी से सी और ई आ जाएगा, और ई और सी से डी भी आ जाएगा। सी से डी भी आ गया, तो ए बी की हो सकता है। इज इट ओके? और कोई ऐसा है जो की हो सकता है? सर ई हो सकता है। बिल्कुल, ये ध्यान रखो, अगर ए बी की है और ए बी ई से डिटरमाइन हो रहा है तो ई बी तो की होगा। यस सर। ई से हम ई गए, ई से ए बी गए, और ए बी से तो सब ले लिया था ना। यस सर, ए बी से सी और डी आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ई बी तो की हो गया। और कोई हो सकता है क्या? नहीं सर। देखो, जो एट्रीब्यूट्स, एक और कंडीशन देखी थी, जो एट्रीब्यूट्स ओनली राइट साइड में लेफ्ट में है ही नहीं, वो तो की का पार्ट हो ही नहीं सकता। जैसे डी, तो डी तो की में होगा ही नहीं कभी। इज इट ओके ना? समझ में आया कि नहीं? सर सीई भी की हो सकता है। सीई, अब देखो सीई की होगा, गारंटी है, लेकिन आप देखो कौन सी की होगा। सी कर लिया ना, ई ए बी सी डी सब आ जाएगा इससे, है ना। लेकिन आप देखो, जब ई की है तो ई तो इसका, तो ये सुपर की आएगा, ना कि कैंडिडेट की। और ये कैंडिडेट की है, तो हमको क्या चाहिए होता है, कैंडिडेट की, बिकॉज ई इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ सीई। इज इट ओके? जब ई की है तो हम सीई को क्यों लेंगे, क्योंकि ई इसका पार्ट ही तो है, ई की सफिशियंट है ना। जब ई अकेला ही की बन सकता है तो सीई की लेने की क्या जरूरत है? ऐसे तो फिर एबीसी ले लो, एबीसी भी की होगा, चेक कर लो। yes, फिर जरूरत क्या है? ऐसे एबीसी डी ले लो, वो भी की होगा। तो छोटा से छोटा लिया जाता है ना। इज इट ओके ना? यस सर। तो सीई को की नहीं मानोगे आप, ठीक है ना। ये सुपर की है, की नहीं है, वो कैंडिडेट की नहीं है, सुपर की है। लेकिन अपन को क्या चाहिए होता है, कैंडिडेट की। तो दो ही कैंडिडेट की है इसमें, ए बी एंड ई। इज इट ओके? इसके अलावा अब कोई नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। यस अब सर। इसमें चेक करो कौन सी नॉर्मल फॉर्म है। जब ए बी की है तो ए बी से सीई बन गया, ई की है ई से ई बी बन गया। तो अब इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रही है आपको? ऐसी इस टाइप की कोई डिपेंडेंसी है, ए टेंस टू बी टेंस टू? नो सर। पार्शियल इसी से तो बन सकती है, इससे तो बन ही नहीं सकती। इज इट ओके ना? नहीं है सर, कोई पार्शियल नहीं सर, पार्शियल तो नहीं है। इस गारंटी है कि 2NF में तो हो गया। 3NF चेक करो। 3NF के लिए क्या चेक करना होता है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मतलब कोई ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? एक तो सी हो गया, एक डी हो गया। ये नॉन की एट्रीब्यूट्स ट्रांजिटिवली की पे डिपेंडेंट हो रहा है क्या? मतलब कोई ऐसा हो, जैसे की से हम गए इधर कुछ पे गए, डी हो रहा है ए बी से, क्योंकि सी आता है फिर सी से डी आता है। बिल्कुल, डी ई से भी हो रहा है। जैसे ई से मैं कहां पे गया, ए बी पे गया, से ए बी पे गया, फिर और ए बी से सी पे गया, ए बी से सी मिलेगा हमें, और फिर सी से डी मिलेगा। ये भी हो जाएगा। और ए बी से भी ट्रांजिटिविटी आएगी। ए बी से सी आप जा सकते हो, और सी से डी जा सकते हो। इज इट ओके ना? तो एक तो ट्रांजिटिविटी इसके बीच में भी आ जाएगी और एक इसके बीच में भी आ जाएगी ट्रांजिटिविटी। इज इट ओके ना? यस सर। तो दोनों से ट्रांजिटिविटी, तो इसका मतलब ये 3NF में नहीं है। जब 3NF में नहीं है तो BCNF में चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है, अगर कोई 1NF सबसे नीचे होता है, फिर 2NF होता है। अगर 2NF में है तो वो 1NF में होगा 100%। इज इट ओके ना? फिर 3NF होता है, फिर इससे ऊपर क्या होता है, BCNF, ऐसे करके फिर 4NF और 5NF। ओके ना? यस सर। अगर कोई BCNF में है तो 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, 1NF में भी होगा, ठीक है ना। ओके यस।
ठीक है, तो इसका हाईएस्ट आंसर क्या आएगा 2NF। 2NF। इसका करो दूसरे वाले का, नीचे वाले का। इसमें ऐसा देख लेना, ये दिया हुआ है, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे x टेंस टू w, w टेंस टू x है, तो उसको लोग कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो x इसका मतलब कैंडिडेट की हमारा y हो ही जाएगा, w टेंस टू x और x बाई टेंस टू z। तो पहले तो की निकालो, की क्या है सर एक्स वाई, बताओ। सर एक्स वाई हो जाएगा। x बाय, और कोई आ रहा है? नहीं सर। अरे यार ये भी एक हमेशा चेक करा करो, जब एक्स वाई की है तो w से x डिटरमाइन हो रहा है, इसका मतलब बाई w भी की होगा, गारंटी है, आप चेक कर लो। अच्छा, ओ यस यस। अगर x किसी x की का पार्ट है और x किसी एट्रीब्यूट से डिटरमाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खुद भी की का पार्ट होगा, तो इसका मतलब w भी की का पार्ट होगा ना, तो बाई w भी की होगा ना। यस सर। चेक करो बाई w है कि नहीं है। बाई आ जाएगा, By w आ W। जाएगा, w से x आ जाएगा, जब w x आ गया तो x y आ गया, सब आ गया, तो z भी आ जाएगा ना। एक्स वाई आ गया तो जेड आ ये जाएगा। गलती मत करा करो, की अगर करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया तो आधा काम आपका हो गया। इज इट ओके ना? अब करो इसको, अब आइडेंटिफाई करो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या है? ओनली जेड। पार्शियल डिपेंडेंसी देखनी है हमें। पार्शियल देखो, कोई है, कोई एक्स से जेड हो, या बाय से जेड हो, या डब्ल्यू से जेड हो, कोई है? नहीं सर, पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। इसका मतलब ये 2NF में तो है, गारंटी है। 3NF के लिए ट्रांजिएंट देखते हैं। हाँ, ट्रांजिटिव देखो, जेड कोई ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट कर रहा है कहीं पे की पे? जेड डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना एक्स वाई पे। यस सर। क्योंकि एक चीज और याद रखो, अगर अगर एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है, सिंगल नॉन की एट्रीब्यूट्स है ना, तो कभी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती है, ध्यान रखना। सर YW के केस में हो सकती है ना? कैसे हो सकती है बताओ? YW से हमें हमारा X मिला और X से भाई एक्स, ये वाली डिपेंडेंसी देखो ना, ये डायरेक्टली है ना। सर, बट YW में हम, अच्छा Y की है हमारी। अच्छी भाई मैं बोल रहा हूं, जब एक सिंगल नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट्स है ना, नॉन की एट्रीब्यूट्स है कोई टेबल में, तो 101% वो 3NF में होगा। मैं बता दे रहा हूं ना आपको, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी नहीं, होगी नहीं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, यस सर। तो ये चीज तो ध्यान, मतलब अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, कोई नॉन की एट्रीब्यूट्स है, सिंगल है, तो उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने का तो सवाल ही नहीं है। ट्रांजिटिव जब बनती है, जब एट लीस्ट 2 नॉन की एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, तभी बनेगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नहीं तो बनेगी नहीं। यस सर। बन सकती है, सिंगल पे भी बन सकती है, लेकिन कब कब? जैसे अगर ऐसा होता, इसमें कैसे ऐसा होता, जैसे x टेंस टू w लिखा है, और x अगर कोई ऐसा डिपेंडेंसी बन जाता जहां पे x बाई टेंस टू w और w टेंस टू z, और यहाँ पे w टेंस टू x, ऐसा कुछ हो जाता ना। इसमें बन रहा है ना XW की हमारा। ये क्लियर है? यस सर। इसमें हमारे की क्या है इस वाले रिलेशन में? एक तो एक्स वाई हो गई, यस सर, एक XW सर YW भी हो जाएगा ना? YW बाई डब्ल्यू भी है, और इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें है। कैसे? देखो एक्स वाई से डब्ल्यू पे गए और डब्ल्यू से
W से Z तक है। तो ये ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट है Z की नहीं है? यस सर। तो ये 3NF में नहीं है, नॉट इन 3NF, और ये इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। इज इट ओके? क्योंकि Yes. Z डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स वाई पे, ये W के थ्रू कर रहा है ना? इज इट ओके? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस वाले केस में आप देखोगे, इस वाले में हमारे में क्या है, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका मतलब ये 3NF में तो है। अब 3NF में है तो BCNF चेक करो, इसका BCNF है क्या? BCNF में क्या कहता है कि लेफ्ट साइड वाला या तो की हो या सुपरसेट हो राइट साइड वाले का, तो ना तो ये एक्स की है ना सुपरसेट है, तो इसका मतलब ये BCNF में नहीं है, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इसका क्या आएगा? 3NF। इज इट ओके? यस सर। ओके, यस सर। तो ये क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के लिए। अब ये 4NF आता है अपना, तो वो मैं और आपको बता देता हूँ 5NF। फिर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ऐसे भी आ सकता है और दूसरी तरीके से क्या आ सकता है, इसके जगह पे आपको ये एफडीज ना दिए हो, आपको क्या दिया हुआ? टेबल। ऐसे टेबल दे दिया उन्होंने, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, जेड दे दिया, ऐसे दे दिया। अब आपको क्या है, ये डिपेंडेंसी खुद से आइडेंटिफाई करो क्या बनेंगी ये। तो आप कर पाओगे? अगर टेबल दे दूं मैं तो टेबल से डिपेंडेंसी बना लोगे? ये बना सकते हो? कैन यू डू इट? सर ट्राई कर लीजिए। सर ट्राई तो कर सकते हैं। अरे ट्राई, मैंने एक बार क्लास में, अगर आपने अटेंड किया हो, आई डोंट नो यू हैव अटेंडेड दैट क्लास और नॉट, in the starting of FDs I have explained that how we can make a dependencies from the table. ये सबसे पहले दिन ही मैंने बताया था आपको। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं उसके बाद 4NF 5NF बताऊंगा, तभी आपको क्वेश्चन तब कर पाओगे ना। अगर टेबल से आपको डिपेंडेंसी बनाना आ गया तो आप आराम से कर सकते हो ना, ऐसे भी, है कि नहीं? क्यों भाई? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको डिपेंडेंसी बनाना बताता हूं। जैसे एक टेबल ले रहा हूं और फिर आपको देता हूं, फिर आप अपने तरफ से सोचिए ना, फिर मैं बताऊंगा तरीका कि हाउ वी कैन मेक अ डिपेंडेंसीज फ्रॉम द टेबल। सपोज वी आर हैविंग अ टेबल, हमारे पास टेबल है ABC, ये एट्रीब्यूट्स हैं टेबल में, और कुछ वैल्यूज होंगी टेबल में। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 1 4 2, ये वैल्यू दिया हुआ 3 5 6, ठीक है, 3 4 6, ठीक है, 7 3 8 7 3 8, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 9 1 0। अभी आप नहीं बना पाओगे, मेरे को पता है। अभी आप बना सकते हो क्या वैसे डिपेंडेंसी? इससे कौन कौन सी बनेगी, बना सकते हो? जैसे मैं कहता हूं, मैंने सपोज करो ऐसा लिख दिया A टेंड्स टू B, क्या ये डिपेंडेंसी इसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? आप चेक कर सकते हो, ये आंसर कर दो यस और नो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं कैसे करते हैं। नो सर। नो सर। नहीं कर पाओगे, ठीक है, गुड। अब मैं तुमको जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो डेफिनेशन है, अगर वो आपको याद है, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो एफडीज का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है, गिवन अ रिलेशन आर, याद रखना, इसको रट लेना, गिवन अ रिलेशन आर एंड टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स A एंड B। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, दो सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जो क्या क्या है, A और B है हमारे पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू R, ये उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हमको दिए हुए हैं, विद रिस्पेक्ट टू R। इज इट ओके? देन ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ ऐसा लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू R, इसको ऐसे बाद में लिखना, ऐसे करके लिखो सिंपल टर्म में। देन अगर ऐसा है, देन A functionally determines B मीन्स दैट इज, इसको क्या बोलेंगे, A टेंड्स टू B होगा कब,
ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, इसका मतलब है ए टेंड्स टू बी। ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली if any two tuples or two rows है ना in the table, any two tuples in the two tuples t1 ले लो एंड t2 ले लो, दो रोज है ले लो ऑफ r, जहां कहीं भी हो वेयर एवर, और जब कभी भी हो वेयर एवर, t1 ऑफ a इक्वल्स टू t2 ऑफ a, अगर ऐसा है देन t1 ऑफ b इक्वल्स टू t2 ऑफ b। ये डेफिनेशन मैथमेटिकली, इसका मतलब है सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगर a टेंड्स टू b है, इसका मतलब इन दोनों एट्रीब्यूट्स, ये दोनों की टेबल देखो, इस बार ये वाले के कॉलम देखो, उसमें कोई दो रो उठाओ, कोई भी दो रो उठाओ, मतलब सपोज करो ये रो ले ली मैंने, ये रो ले ली, और इसका t1 ऑफ a क्या है 1, इक्वलेंस टू t2 ऑफ a, कहीं पे ऐसा दिख रहा है 1 इक्वलेंट टू 2? नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। कौन सी जगह पे दिख रहा है? यहां पे, ठीक है। इज इट ओके? 3 दिख रहा है, t1 ऑफ a क्या है 3, इज इट ओके? और t2 ऑफ a क्या है 3 है? यस सर। अगर ऐसा है, इफ इट इज, कहीं पे ऐसा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग t1 ऑफ b, उसी लाइन में b क्या है 5, और t2 ऑफ b भी 5 ही होना चाहिए, तो t2 ऑफ b क्या है यहाँ पे? इट शुड बी 5, बट यहाँ पे ये क्या है 4। अगर 3 का मतलब 5 है, तो 3 का मतलब यहाँ पे भी 5 ही होना चाहिए, अदरवाइज गलत है। इज इट ओके? यस सर। तो इसका मतलब A टेंड्स टू B डिपेंडेंसी कभी हो ही नहीं सकती इस रिलेशन में। इज इट ओके? यस सर। ऐसे ही आप देखो किसके लिए, अब मैं डिपेंडेंसी लिखता हूं, कौन सा एग्जांपल के लिए, आप देखो ये है क्या, A टेंड्स टू C है, यस सर। A टेंड्स टू C, तो 3 से 6 है, यहाँ पे भी 3 से 6 है, तो ये है एग्जिस्ट करता है। इज इट ओके? ओके ना? यस C टेंड्स टू, ये देखो यही दो कॉमन है, तो 6 से 3 है यहाँ पे भी, तो ये भी है, हो गया, ठीक है। B टेंड्स टू C देखो, 4 से 2 है, 4 से 6 है, तो ये नहीं होगा। इज इट ओके? सर टेबल वाले में कभी ऐसा हो सकता है कि A टेंड्स टू C है पर C टेंड्स टू A नहीं है? हो सकता है, हो सकता है, मैं बता देता हूं एग्जांपल कैसे। A है और C है, A टेंड्स टू C 1 2 3, यहाँ पे मैंने ले लिया 4 5 4, ले लो। A टेंड्स टू C तो है ये, बट C टेंड्स टू A नहीं है। देखो 4 से यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 4 से 3 आ रहा है, बट यहाँ पे 1, यहाँ पे तो कोई कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है, तो A टेंड्स टू C तो होगा ही होगा। इज इट ओके? जैसे इसका A का मतलब ले लो, यहाँ पे मैं इसको और सिंपल बनाऊंगा आपको समझाने के हिसाब से। देखो डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नेम ले लिया, सॉरी रोल नंबर ले लिया, पहला कॉलम किसको ले लूं? रोल नंबर को। आपको मतलब समझ में आता हूं, डिटरमाइन रोल नंबर और नेम, ये रोल नंबर 1 2 3 हो गए 3 स्टूडेंट्स के, और इनके नेम में क्या दे रहा हूं, इसका नेम A है, इसका नेम B है, और इसका नेम भी A है। तो देखो रोल नंबर से मैं नेम तो पता कर सकता हूं, बट नेम से ये गारंटी नहीं है कि मैं रोल नंबर पता कर पाऊं। क्यों भाई? मैं आपको अगर Yes, किसी का रोल नंबर दे दूं तो आप नेम पता कर लोगे ना, यस सर। क्योंकि रोल नंबर यूनिक है। बट अगर मैं नेम बोल दूं तो नेम से आप रोल नंबर पता कर लोगे क्या? तो यहाँ पे रोल नंबर नेम को तो आइडेंटिफाई कर रहा है, नेम को तो डिटरमाइन कर रहा है, बट नेम इज नॉट डिटरमाइनिंग रोल नंबर, ये गलत है। इज इट ओके? क्योंकि दो स्टूडेंट्स के नेम सेम है बट रोल नंबर अलग है। क्यों भाई? यस सर। अब शायद मेरे को लग रहा है मीनिंग ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको, डिटरमाइन का मतलब क्या है ना? यस सर, यस। क्लियर हुआ ना?
तो अब आप टेबल से डिपेंडेंसीज निकाल लोगे। अच्छा चलो इसमें ये भी बताओ, मैं एक और इसमें लिखे देता हूं आपको थोड़ा सा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने लिखा बी सी टेंस टू ए, तो बताओ ये डिपेंडेंसी है क्या? अब दोनों एट्रीब्यूट्स मिला दिए मैंने, ये दोनों, तो इन दोनों में कोई कॉमन बन रहा है क्या? देखो कहीं पे कॉमन आ रहा है क्या? कोई कॉमन ही नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स, वो कोई रो कॉमन है क्या? नो सर। नहीं है ना, तो इसका मतलब हमेशा बीसीए को डिटरमाइन करेगा। इज इट ओके? तो ये Yes, sir. होगा। ऐसे ही मैं आपको बोलूं एसी टेंस टू बी चेक करो, चलो एसी टेंस टू बी चेक करो। सर ये नहीं बनेगी क्योंकि बिकॉज एसी में कॉमन देखो पहले कहीं पे है 3 6 से एक जगह तो 5 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है, तो ये नहीं है, देखो ये है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। इज इट ओके? ओके ना? यस सर। तो आपको ऐसे ही चेक कर, आपको टेबल के थ्रू भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली कि ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, कौन से में नहीं है। तो इस तरीके से लॉजिकली आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और टेबल के फॉर्म में चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लास्ट टाइम पे जब पढ़ाया था तो टेबल के फॉर्म में ही पढ़ाया था। जैसे 3NF पढ़ाया, BCNF पढ़ाया। जैसे 3NF मैंने बताया आपको, 3NF मैंने कैसे बताया, जैसे सेकंड NF भी बताया। तो सेकंड NF में ये डिपेंडेंस, ये एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें मैंने बोल दिया ये दोनों की हैं, मिलके की बना रहे हैं। इज इट ओके ना? तो अब इससे डिपेंडेंसीज आप निकालोगे तो सी नंबर से एक्सेस डेट बैलेंस, ये डिपेंडेंसीज बन रही थी। ये देखो सी नंबर से एक्सेस डेट बैलेंस नेम, एक तो डिपेंडेंसी ये बनी, दूसरी डिपेंडेंसी ये बनी। तो इसमें एक्स अकाउंट नंबर से बैलेंस ब्रांच ये हो रहा है, ये पार्ट है इसका, तो ये पार्शियल हो गया। ओके ना? अब देखो बना के इससे डिपेंडेंसी ये बन रही है क्या, सीआईडी की है कि नहीं है, पहले तो ये चेक करो, पहले डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करो इसमें। चलो ये वाली टेबल है, आपको डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करना है, सारी की सारी करो। आपको नहीं पता ये की है कि नहीं है, और ये भी चेक करना ये डिपेंडेंसी बन रही है क्या। सीआईडी अकाउंट नंबर से दोनों से मिलके हम एक्सेस बैलेंस और ब्रांच नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, चेक करो। चेक करो, आप कर पा रहे हो? सर एक ये डिपेंडेंसी होगी क्या सीआईडी और बैलेंस से? सीआईडी और बैलेंस, यस सर, पूछ लेते हैं। हेलो। यस सर। हाँ यार सॉरी यार, फ्लक्चुएशन हो गया था लाइट का, जिसलिए वो नेट बंद हो गया। यस सर। ठीक है ना। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से स्क्रीन, एक मिनट, है ना। जस्ट इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। हाँ क्या कह रहे थे, अब बताओ। सर सीआईडी और बैलेंस के थ्रू हम ब्रांच नेम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब बस मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ये सीआईडी क्या एंड बैलेंस, सीआईडी एंड बैलेंस है ना। हाँ के थ्रू ब्रांच नेम, ब्रांच, सीआईडी और बैलेंस से हम ब्रांच कर सकते हैं क्या। देखो सीआईडी का कॉलम लो, बैलेंस का कॉलम लो। सीआईडी और बैलेंस का कॉमन कहाँ पे सेम आ रहा है, C01
5000, ये कॉमन ऐसा कोई C01 5000 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, कॉमन नहीं है। तो C02 5000 देखो कोई है? नो नो सर, सर। कॉमन कोई जीरो नहीं। कोई, हाँ कॉमन होना चाहिए। C01 25,000 है? नहीं। C03 25,000 है? नहीं। तो इसका मतलब CID बैलेंस से आप ब्रांच को गारंटीड डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना? यस सर। ओके ना? इस टेबल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डिपेंडेंसी होगी वहां पे CID और बैलेंस से ब्रांच को डिटरमाइन करने वाली, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी डिपेंडेंसी मेंशन नहीं की है, ये कम ही कुछ ही डिपेंडेंसी मेंशन की है, कुछ होती है लेकिन सारी सारी नहीं मेंशन नहीं की है यहाँ पे। इज इट ओके ना? जैसे सपोज करो मेरे पास एक टेबल है, मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे ABC, मैंने लिख दिया यहाँ पे FEE, ठीक है, DEE और BCE, ACB और ABC, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये डिपेंडेंस, ये वैल्यू दे दी और मैंने कहा कि ऑल पॉसिबल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करो इस टेबल के लिए। तो आप कर सकते हो? यस सर। करो, कितनी आएंगी निकालना, टोटल कितनी होंगी, ये 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगी, ठीक है ना? जैसे A टेंस टू C है क्या, पहले चेक कर लो, सिंगल सिंगल वाली चेक कर लो, फिर मिक्स वाली बना लो। इज इट ओके ना? ओके। सर A टेंस टू C और C टेंस टू A दोनों नहीं है। वेरी गुड, ये सही है, दोनों ही नहीं है, सही बात है। सर एक AB टेंड्स टू C बनेगी इसमें। AB टेंस टू C बनेगी, बिल्कुल वेरी गुड बनेगी ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन देखोगे तो कुछ मिलेगा, कोई नहीं है ना? जो कॉमन नहीं होगा वो तो बनेगी हमेशा। इसका मतलब है जैसे यूनिक जो वैल्यू होती है ना कैंडिडेट की, सारे के सारे एलिमेंट्स को डिटरमाइन करती है, वो इसीलिए करती है क्योंकि वो यूनिक होती है। इज इट ओके ना? यस सर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है तो आप कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो अब मैं 4NF एक्सप्लेन करके आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूं, देन अपन फिनिश करते हैं क्लास को। इज इट ओके ना? यस सर। मतलब आप डिपेंडेंसी से कैसे भी आपको क्वेश्चन दिया जाए आप कर लोगे, मेरे को ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ। इज इट ओके ना? यस सर। ओके गुड। तो ये स्लाइड जो है उनको थोड़ा सा रिवाइज करना, अच्छे से करना, कर लोगे वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे BCA ने पढ़ा दिया तो इसका टेबल के फॉर्म में एग्जांपल भी है, देखो ये टेबल के फॉर्म में दिया, यहाँ पे डिपेंडेंसीज देखोगे तो ये FD बन रही है ये, और इसमें की क्या है, रोल नंबर और सब्जेक्ट। तो रोल नंबर ऑफ, और ये फैकल्टी, देखो BCNF का कंडीशन क्या था, लेफ्ट साइड में या तो की होना चाहिए या फिर सुपरसेट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट और फैकल्टी के बीच में देखो सब्जेक्ट सबसेट नहीं है फैकल्टी का, ना की है, जबकि पहले वाले में रोल नंबर सब्जेक्ट की है। इज इट ओके ना? इज इट ओके ना? तो ये तो अलाउड है BCNF में, बस ये अलाउड नहीं है BCNF में, इस वजह से ये BCNF में नहीं है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। यस सर। तो इसलिए BCNF में नहीं है, तो इस पे ज्यादा पढ़ना मत, सिंपली आपने, मैंने डेफिनेशन दी है वो आप फोकस करो, उनसे आप काम कर लो। फिर इसलिए इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, BCNF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी फैकल्टी सब्जेक्ट, तो फैकल्टी सब्जेक्ट की नई टेबल बना देते हैं यहाँ पे डिकम्पोज करके, सब्जेक्ट अलग चला गया, फैकल्टी अलग चला गया। ओके ना? तो ये भी लास्ट टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये एक्सरसाइज भी बता दिया। तो आई थिंक देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट एनी रिलेशन इनटू अ गिवन फॉर्म, है ना? और एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पे मैंने, आपका हो गया डिपेंडेंसीज का, याद है आपको? एक एग्जांपल नोट करवाया था मैंने आपको, मैंने कहा इसको कन्वर्ट करना, कौन से में है और फिर कन्वर्ट करना इसको इसमें, ऐसे करके दिया था, याद है? सर मैं तो नहीं था लास्ट क्लास में। नहीं थे आप? चलो मैं No, आप sir. लोगों को दे रहा हूँ। कौन, रोहन आप तो थे शायद? नहीं सर, मैंने लास्ट की 2-3 क्लासेस नहीं लगाए थे क्योंकि वैक्सीन के बाद फीवर है की वजह से। अच्छा अच्छा, तारू ने भी नहीं किया था? नो सर, मैंने लास्ट और उससे जस्ट पहले वाली तो नहीं लगाई। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको करना आप अच्छे से। पहले तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। इज इट ओके ना?
ABCDEFGHIJ, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है, पहले तो चेक करना है कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है और जिसको हाईएस्ट बताना और 3NF तक लेके आना है जहां जो भी हो, ठीक है। और इसमें डिपेंडेंसी है AB टेंड्स टू C, नोट कर लो कॉपी पे वाले, और BD टेंड्स टू EF, वही सेम एग्जांपल है जो मैंने लास्ट टाइम पे दिया था, और AD टेंड्स टू GH। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है पता है, लास्ट टाइम पे आपने क्लास अटेंड नहीं की, मैं अब पढ़ा रहा हूं तो आपको पीछे का याद ही नहीं होगा। I और H टेंड्स टू J, ये डिपेंडेंसी थी, तो इनको पहले चेक करो कौन से में है और आपको 3NF तक कन्वर्ट करके लाना है, इसको 3NF में आना चाहिए ये रिलेशन, ठीक है। तो ये करना आप एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया सर मतलब इसको 3NF में लाना है या फिर 3NF इसका आएगा? पहले चेक करो ये किस में है, अगर नहीं है 3NF में तो 3NF तक लेके आना है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। वैसे चेक करोगे तो आपको ये फन NF में मिलेगा, सेकंड में भी नहीं है वो, ओके सर। ठीक है। अब चेक कर लेना, ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अभी मैंने करवा दिया, ठीक है। अब मैं 4th NF में आता हूँ। 4th NF का जो कंडीशन होता है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज का होता है। देयर शुड नॉट बी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, रिलेशन शुड बी इन BCNF एंड देयर शुड नॉट बी एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है, फॉर ए डिपेंडेंसी X टेंड्स टू Y if for a single value of X multiple values of Y exist। अगर X ने Y की मल्टीपल वैल्यूज को डिनोट किया है तो इसको इस टाइप से डिपेंडेंसी बनाते हैं हम, multiple value exists, then table में है multi value dependency। For example here you can see 101 से देखो DS, ये एक डिपेंडेंसी आप देखोगे तो रोल नंबर से, जैसे मैं बनाऊंगा यहाँ पे तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी डिनोट तो डबल से करते हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जैसे X और Y के बीच में, तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं मल्टी वैल्यू को। तो यहाँ पे आप देखोगे रोल नंबर है, रोल नंबर से मैं सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकता हूं क्या, और रोल नंबर से मैं फैकल्टी को भी डिटरमाइन कर रहा हूं, कर पा रहा हूं। बट यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं इसके लिए, देखो 101 पे यहाँ पे पटेल है, यहाँ पे 101 पे अगेन पटेल है, देखो ना है। यस सर, बट सब्जेक्ट में तो नहीं हो रहा डिटरमाइन। कैसे नहीं हो रहा, 101 पे DS है, 101 पे DB में से, 101 पे DS फिर से है, 101 पे फिर से DB में से है। तो चल बट अभी जो हमने किया था उसमें तो ये था ना कि अगर सेम होता है तो इस साइड भी सेम होना चाहिए। हाँ तो है, तो डेफिनेशन क्या थी हमारी, T1 ऑफ A इक्वल्स टू T2 ऑफ A, देन अगर ऐसा है तो T1 ऑफ B इक्वल्स टू T2 ऑफ B, ऐसा होना चाहिए ना। तो यहां से हमने ये डेटा स्ट्रक्चर लिया तो बन के करस्पॉन्डिंग हमारे यहाँ पे भी तो डेटा स्ट्रक्चर है। ये लो, मैं इन दोनों को ले लूँ ना, ये T1 हो गया मेरा, ये T2 हो गया, और फिर ये T1 ले लो, ये T2 ले लो, इसके लिए बोलो बताओ कहाँ पे दिक्कत है। तो R नंबर से फैकल्टी आ सकता है और R नंबर से सब्जेक्ट आ सकता है, यहाँ पे आ सकती, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है, दो दिए हुए हैं हर एक के लिए, तो ये कंडीशन तो कभी वायलेट होगी ही नहीं ना। यस सर। नॉट वायलेटिंग ना, ये कंडीशन तो वायलेट नहीं हो रही है ना। इज इट ओके ना? यस अगर अगर मैं इसमें से ये वाली रो डिलीट कर दूं तो ये कंडीशन वायलेट हो गई ना हमारी, क्योंकि फिर DBMS के लिए वायलेट हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि 101 पे यहाँ पे DS और ये 101 पे DBMS है कि नहीं? यस सर। तो वायलेट हो रही है, लेकिन ये दो दिया हुआ है ना, तो मल्टी वैल्यूड, इसीलिए तो इसको मल्टी वैल्यूड, इसकी मल्टीपल वैल्यू डिटरमाइन हो रही है सिंगल वैल्यू से हो रही है ना। तो उस टाइप की डिपेंडेंसीज को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब इसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट और फैकल्टी दोनों के लिए मल्टी वैल्यूड है ये, तो इसके लिए इसको डिटरमाइन करना होता है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है, इसको लिखते हैं जैसे रोल नंबर, जैसे इसको अपन, सॉरी यहाँ पे मैं लिखवाऊं तो आपको ऐसे लिख सकते हो इसको, जैसे रोल नंबर से मैं किसको डिटरमाइन कर रहा हूं, सब्जेक्ट को, और रोल नंबर से मैं किसको कर रहा हूं, सॉरी एक बना दो इसको, रोल नंबर से मैं किसको भी कर रहा हूं, फैकल्टी को भी। ओके, तो ये रोल नंबर और सब्जेक्ट भी मल्टी वैल्यू है, तो उसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, रोल नंबर
और फिर ये 2 बना दो, सब्जेक्ट और फैकल्टी, और मल्टी वैल्यूड है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसकी ये मल्टीपल वैल्यूज को डिटरमाइन कर रहा है विद सिंगल वैल्यू। देखो 101 से हम पटेल को भी डिटरमाइन कर रहे हैं और सा को भी डिटरमाइन कर रहे हैं, 2 वैल्यूज डिपेंडेंट है ना इधर ये सिंगल वैल्यू पे। हम इसमें T1 और T2 किस तरह कंसीडर करते हैं? मतलब अभी जो हमने पीछे T1 और T2 ये गारंटी नहीं है, सीक्वेंस में हो कोई भी हो सकती है, कोई भी 2 टपल ले लेना हम। हाँ तो सर, अगर हमने कोई भी 2 कंसीडर किए तो अगर हम सीक्वेंस वाले कंसीडर करते हैं, पहला 10, तो आप सीक्वेंस करो, मैं तो ये बोल दूंगा ना आप ये वाली कंसीडर करो इस केस के लिए, ये कंसीडर करो इसके लिए, तो यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो रही है क्या? तो सर लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि अगर एक जगह भी वायलेट हो गई तो फिर वो true नहीं तो होगी। यहाँ पे सेटिस्फाई भी तो हो रही है, इसीलिए तो इसको स्पेशल नाम दिया है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इज इट ओके ना? डिपेंडेंसी है, देखो गलत भी नहीं बोल सकते उसको, सही भी नहीं बोल सकते, इसलिए मल्टी वैल्यूड है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो वो 4NF में माना जाएगा। इज इट ओके? ओके सर। तो इसके करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए, इस टाइप की डिपेंडेंसीज को हटाने के लिए, क्योंकि ये डिपेंडेंसी कुछ नहीं कर रही, अननेसेसरी रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस कर रही है कि नहीं? ओके ना? यस सर। तो ये रिडंडेंसी को एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन होता ही है रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, तो रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हमको नॉर्मलाइजेशन करना होता है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कंडीशन 4th ये तो BCNF में होना चाहिए है, एंड डज नॉट हैज नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। इज इट ओके? ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसको करने के लिए इसने तोड़ दो, रोल नंबर को सब्जेक्ट के साथ में डाल दो, फैकल्टी के साथ में डाल दो, तो रोल नंबर 101 पे DS आ गया, रोल नंबर 101 पे DBMS आ गया, तो ये तो 2 सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए, सारे के सारे रोल नंबर भी कवर हो गए। ऐसे ही फैकल्टी को डाल दो, 101 पे फैकल्टी को ना पटेल और 101 पे सा। इज इट ओके? देखो डिकम्पोज हो गया, अब वो कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिख रही है यहाँ पे दोनों में, जबकि डिपेंडेंसी आप नॉर्मल देखोगे तो रोल नंबर से सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर रहे हो और रोल नंबर से आप किसको डिटरमाइन कर रहे हो? फैकल्टी को, लेकिन मल्टी वैल्यूड नहीं है ये दोनों ही। अब आप ये नहीं लिख सकते रोल नंबर से सब्जेक्ट और फैकल्टी, ठीक है ना? यस सर। इज इट ओके ना? सर जो हमने टेबल बनाई है उसमें भी मेरे को समझ नहीं आया कि हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। 101 पे जैसे सब्जेक्ट टेबल जो है उसमें 101 पे ही DS है और 101 पे ही DBMS है, हाँ हाँ। तो सर ये डिटरमाइन कैसे हुई हमारी? देखो 101 पे एक्चुअली जो डेफिनेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसको T1 ऑफ A इक्वल्स टू T2 ऑफ A, अगर ऐसा है तो आप बताओ T1 ऑफ A में ये 2 रो उठा रहा हूँ। सर नहीं, जो हमने नई टेबल बनाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हाँ, जो सब्जेक्ट टेबल हमने अब बनाई है इसमें अगर हम T1 और T2 उठाते हैं, इसमें तो हमारे पास 2 ही हैं तो हमें वही 2 लेने पड़ेंगे, और इसमें हमारे पास सब्जेक्ट लेकिन सेम नहीं है, तो फिर सर हमने ये कैसे कहा कि हम रोल नंबर से देखो एक्चुअली ये थोड़ा सा टेबल इनने गलत बनाई है, इसको ऐसे बनाना चाहिए था, मल्टीपल सब्जेक्ट्स है ना, इसके लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए एक रोल नंबर दिया हुआ है कि ये स्टूडेंट्स को कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो ये अभी अगर आप इसको अगर देखोगे ना तो ये इस टाइप से लिखा जाए जैसे 101 रोल नंबर और सब्जेक्ट्स में कितने सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट हम ये 101 रोल नंबर एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर हो गया, तो ये स्टूडेंट्स कितने सब्जेक्ट में फेल है या कितने सब्जेक्ट से पढ़ रहा है, तो इसके लिए सब्जेक्ट कितना पढ़ रहा है, एक DS भी पढ़ रहा है और DBMS भी पढ़ रहा है। इज इट ओके ना? सुनते जाना है ना? ये सर अब ठीक है, ठीक है, तो ये लेकिन फिर ये 1NF में भी नहीं होगा, ये 1NF में भी नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा ये? बिकॉज एक कॉलम में आप मल्टीपल एंट्रीज नहीं रख सकते, यही तो प्रॉब्लम थी, आप देख सकते हो उसका पुराना वाला जो था ना 1NF वाला कंडीशन। ये देखो ये एड्रेस वाला है, तो मल्टीपल एड्रेस एक साथ आ रहे हैं, तो ये 1NF में नहीं है, ठीक है, एक सब्जेक्ट वाला भी दिया हुआ है।
एक मल्टी वैल्यूड के साथ में दिया है, ये दिया हुआ देखो, ये 101 है, किस में फेल्ड हुआ है, डीएस में और डीबीएमएस में। तो ये मल्टीपल एंट्रीज आ रही है कॉलम में, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जब आ जाता है ना, तो उस केस में वो भी बनाने में भी नहीं माना जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीपल टेबल में डिकम्पोज कर देते हैं। कैसे, ये देखो, रोल नंबर गया और ये सब्जेक्ट को अलग बना दिया, ये देखो 101 डीबीएमएस ये बनाया। इज इट ओके ना? ये सर, बट यहाँ पे हम RID का यूज कर रहे हैं फॉर हाँ, एक एडिशनल वैल्यू यूज कर ली ना हमने डिटरमाइन करने के लिए, है ना। तो इसको एक तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, और दूसरा इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि दो तरीके से बनाने में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको, ये वाला एट्रीब्यूट्स मेरे को ऐड ही नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ 101 लिखा और इसके करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ऐसे करके लिख देते हैं। इज इट ओके ना? तो ये रोल नंबर हो गया, और रोल नंबर 101 है, उसका सब्जेक्ट 1 क्या है, डीएस है, सब्जेक्ट 2 क्या है उसका, डीबीएमएस है। कॉलम बढ़ा देते हैं। इज इट ओके ना? यस, समझ में आ रहा है ना? फिर 102 के सब्जेक्ट क्या है, ये आ जाएंगे। 103 के सब्जेक्ट क्या है, ये आ जाएंगे। ठीक है ना? इज इट ओके? यस सर। ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो 101 से आप ये इसको डिकम्पोज करने का तरीका है कि किस तरीके से आप उसको लिख रहे हो। ठीक है ना? तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स टाइप का बन जा रहा है ना ये, उसको अपन ने इस तरीके से भी लिख दिया, और ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ऐसे करके। ठीक है ना? तो ये 4th एनएम में क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए उसको बस सिंपली डिकम्पोज कर देते हैं। फिर आप अरेंजमेंट जैसे भी आप करना चाहो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? टेबल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारे यहाँ से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी खत्म करना था, वो खत्म हो गया यहाँ से। इज इट ओके ना? 5th एनएम में जब जाते हैं तो 5th एनएम में हमारा क्या आता है, जैसे ये भी एक एग्जांपल दिया है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वाला फंक्शन एज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज टुगेदर आ रहा है, एक साथ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एड्रेस दिया हुआ है, रोल नंबर से एड्रेस को भी डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन एड्रेस आप देखोगे ये कंपोजिट है, आ रहा है, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ आ रही है कॉलम में। तो इसके करने के लिए इस एड्रेस को भी कर रहा है, सब्जेक्ट को भी कर रहा है। तो सब्जेक्ट में भी मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग 101 के, डीएस भी आ रहा है, डीबीएमएस भी आ रहा है, मल्टीपल वैल्यूज है ना, ये एक साथ आ रहा है। तो इसके लिए फिर ये फिर से डिकम्पोज करते हैं, रोल सब्जेक्ट बनाओ, फैकल्टी बनाओ, एड्रेस को बनाओ अलग सेपरेट। ठीक है, ये एड्रेस के लिए आ रहा है। ठीक है, 5th नॉर्मल फॉर्म में जो रहता है वो जॉइंट डिपेंडेंसीज पे बेस्ड होता है, इट शुड बी इन 4NF, और whenever we are decomposing a relation, then after the decomposition should be a lossless. Lossless means whenever we are performing any join operation on that, then join should be lossless, or there will be no loss of information. Okay ना? तो 5NF का सीधा सीधा है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए। डिकम्पोजिशन अगर आपने किया हुआ है, 2 टेबल में डिवाइड किया है एक टेबल को, तो अगर मैं फिर से ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। इज इट ओके ना? तो लॉसलेस लॉसी का मतलब पता है आपको? यस, है ना? डिकम्पोजिशन में बताया था ना मैंने। तो वहां पे जब भी डिकम्पोज करते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स जो यूनिक एट्रीब्यूट्स होता है उसके बेस पे डिकम्पोज करते हैं, जिससे कभी भी मतलब लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं होता, हमेशा लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है। इज इट ओके ना? ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया है, जैसे ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसको डिकम्पोज किया है बेस्ड ऑन दी SID, RID जो भी आप ले सकते हो, सब्जेक्ट आईडी ले रहे हैं और RID, इन दोनों के बेसिस पे किया है। दोनों वैल्यू यूनिक है फॉर करस्पॉन्डिंग टू द स्टूडेंट, है ना। तो इसके बेसिस पे डिकम्पोज किया और ये रिजल्ट बना दिया है यहाँ पे एक टेबल इन्होंने हर एक स्टूडेंट्स के करस्पॉन्डिंग।
then whenever you are performing a join operation on these table, then you will get all the information given in this student result table. You will get all result, whatever available here from this table. Okay, तो ये joint dependencies वाला है. आपको जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में वो BCNF से ज्यादा नहीं आएगा, है ना. तो ये प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं 5NF को. इट इज जस्ट थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है एग्जैक्ट इसका, क्योंकि डेटाबेस BCNF तक ही इतना नॉर्मलाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है. फिर अननेसेसरी, फिर उसमें ज्यादा नॉर्मलाइज करने पर उसका डेटाबेस का परफॉर्मेंस लो हो जाता है. परफॉर्मेंस मतलब ज्यादा टेबल डिवीजन हो जाएगा, तो जब ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ज्वाइन बहुत कॉस्टली हो जाता है. जब ज्वाइन कॉस्टली हो जाता है तो परफॉर्मेंस सिस्टम का क्वेरी प्रोसेसिंग का टाइम जो होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है. तो उसके लिए डिनॉर्मलाइजेशन आता है. इज इट ओके? तो डिनॉर्मलाइजेशन अपन बाद में देख लेंगे. तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप करके देख लेना. डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके दिया हुआ है इनने. सो वी कैन सी इट ऑन द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. सो ठीक है ना. तो ये एग्जांपल है, बस ये आप देख लेना. ये नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये एम्प्लॉय टेबल है और इसको फिर इनने डिकम्पोज किया है डिफरेंट फॉर्म में. ठीक है. तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, एक अपन लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार बैठ के, और देन मैं डिनॉर्मलाइजेशन पढ़ा दूंगा. तो आपका ये नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. इज इट ओके ना? यस सर.